Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Shahid Latif, Associate Professor at Department of Computer Science, Sarhad University, Peshawar. Today we will start a new lecture from the course of Electronics 1. The course code for Electronics 1 is EE216, while this is 2-1 credit hour course. It means that we have to cover 2 hour theory per week, while there is 1 credit hour which is equal to 3 contact hour lab work requirement as well. The topic we will discuss in this lecture is about special purpose diodes, in which we will focus on the Zener Diode. Course details are such that we are in week number 5, and today we will start lecture number 10, and in lecture number 10 we will cover Zener Diode, which is actually chapter number 3 of the textbook. Before starting our new lecture, let's have a look on the previous lectures. Previously in lecture number 1, we introduced the course of Electronics 1 by explaining the course description, the tentative course outlines or the week-wise breakdown of these course outlines, the recommended books. We also discussed the prerequisite details for the course of Electronics 1. We defined the term electronics formally and informally. In lecture number 2, we discuss an atom and the structure of an atom by explaining the Bohr model, the particles of an atom, that is electron, proton, neutron and nucleus, etc., etc. We also discuss the atomic number of an atom. We discuss what are the valence electron and what is a valence shell. Similarly, we discuss orbits, which are the individual paths for each electron, and the group of orbits that is known as a shell or termed as a shell. Finally, we discuss a process where losing or gaining of electron takes place, that is the ionization. In lecture number 3, we classify the matter on the basis of conductivity, and we have 3 distinct classes, that is the insulators, the conductors and the semiconductors. If you remember, insulators are those material which cannot conduct under the normal conditions. On the other hand, conductors are those material which can easily conduct the electric current. While the semiconductors can be defined in various ways, that is, we can say that semiconductors are those material which are neither good insulators nor good conductors, or we can say that semiconductors are those material which have some properties of insulators and some properties of conductors. Our semiconductors are those material which can be used either as insulators or the conductors. We discuss the energy band for all these 3 classes of matter, and finally we discuss the covalent bond and the silicon crystal in semiconductors. In lecture number 4, we discuss the conduction or current in semiconductors. We also discuss the N-type and P-type semiconductors. In this lecture, first of all, we discuss what is an electron-hole pair, what is a recombination process where electrons and hole recombines with each other, what is electron current and the hole current. It means that semiconductors may have or may involve two type of current, that is electronic current and the hole current. Similarly, we discuss a process where we add impurities in our intrinsic semiconductors known as a doping. As a result of a doping, we will have 2 type of material, that is N-type material and P-type material. So how N-type and P-type material are formed, that is discussed in lecture number 4 in detail. In lecture number 5, we discuss the formation of a p-n junction, the p-n junction and the depletion region formation as well. P-n junction means when p-type and n-type material meets, or they are injected on a single silicon substrate. So the meeting point where the p-type and n-type material meets, that is known as a p-n junction. So how the p-n junction is formed, or we discuss the formation of a p-n junction, and at the same time the depletion region is created just after the creation of a p-n junction. So how depletion region is formed. Similarly, we discuss the energy diagrams during the formation of a p-n junction and during the depletion region formation.
In lecture number 6, we discussed the PN junction diode and its working. We also discussed what is biasing, or diode biasing, or DC biasing. When we connect a power supply across a diode, so the diode may be in forward bias or in reverse bias. So when a diode is connected in its forward bias mode, so what is the forward current, what is the forward voltage, etc., etc. Similarly, we discuss the reverse biasing a diode, or you can say that when a diode is connected in its reverse bias mode, so what is the IR, that is reverse current, what is the reverse voltage, what is the reverse breakdown, etc., etc. In lecture number 7, we discussed the voltage and current relationship of a diode, which is termed as a voltage current characteristic of a diode. We discussed the VI characteristic curve for a forward bias of a diode, for the reverse bias of a diode. Similarly, we discussed the complete VI characteristic curve of a PN junction diode. We also discussed the effects of temperature on the VI curve, that if temperature varies, so whether the VI curve change with it or not. We also discussed in lecture number 7 the 3 diode models termed as a diode approximations. These models include ideal diode model, practical diode model, and complete diode model. In lecture number 8, we start the discussion on diode applications, and here we cover the most common application of a diode, that is the rectifier, and its two types, that is half-wave rectifier and full-wave rectifier. In half-wave rectifier, how half-wave rectifier is drawn. So we discussed the block diagram of a half-wave rectifier. We discussed the operation of a half-wave rectifier, the output voltage and the average output voltage of a half-wave rectifier, and finally the peak inverse voltage of a half-wave rectifier. Similarly, we discussed the full-wave rectifier and its two types, the center tape transformer based full-wave rectifier and the bridge full-wave rectifier. And all these terms, that is block diagram, operation, V out average, and peak inverse voltage for both types of a full-wave rectifier as well. In lecture number 9, in our very previous lecture, we discuss the another two important diode application, that is diode limiters and the diode clampers. Diode limiters, which can also be known as the diode clippers or slicers, it has basically two types, simple limiters and biased limiters. Here you can see that simple limiters and the biased limiters. Then simple limiters can be further divided into three types: positive limiter, negative limiter, and dual limiter. Similarly, all these three types can be discussed for the biased limiter as well. In lecture number 9, we discuss the clamper or DC restorer. This is another important application of a diode, that is diode clamper or simple DC restorer, because it adds a DC level into our AC input voltage. So it is again of a two type, that is positive clamper and negative clamper. We discussed that in detail in lecture number 9. Today we will start our lecture by discussing the special purpose diode and some of the types of these diodes, that is Zener diode, the varactor or varicap diode, light emitting diode, the photodiode, laser diode, Schottky diode, tunnel diode, the pin diode, step recovery diode, and the current regulator diode, etc., etc. These are the some example of the special purpose diode which are designed or which are made for some specific purpose. Now we will start with the Zener diode in this lecture. We will focus on the Zener diode. We will start the Zener diode by discussing its schematic symbol and its operation. We will discuss the Zener breakdown and the Avalanche breakdown, that is two types of a breakdown in a Zener diode. We will also discuss the breakdown characteristics of a Zener diode. We will discuss the Zener regulation, how Zener regulate the voltage. Similarly, we will discuss what is the equivalent circuit of a Zener diode. We will discuss the temperature coefficient or the effect of temperature on the characteristic curve of a Zener diode or the operation of a Zener diode. Similarly, at the end of this lecture, we will discuss the Zener power dissipation and the Zener power
derating. Recommended books for this course include Electronic Devices with Conventional Current Version, authored by Thomas L. Floyd. We are using 10th edition of this book. If you have any latest edition or even an older edition, it is also acceptable. The second book for this lecture or for this course is Electronic Devices with Electron Flow Version, authored by the same author, that is Thomas L. Floyd, and with the same edition, that is 10th edition. So these are the two recommended books for this course, but you will see that majority of the contents of this lecture as well as this course are taken from the first book, that is Electronic Devices with Conventional Current Version. Starting with the special purpose diodes. These are the diodes designed for some specific applications, such as a Zener diode, a varactor or variable capacitor or simply varicap diode, the light emitting diode, a photodiode, a laser diode, Schottky diode, the tunnel diode, the pin diode, and the step recovery diode, and finally current regulator diode. So these are the some types of the diodes which are designed for some specific applications. Starting with the Zener diode. Remember that this lecture focuses on the Zener diode. So what is a schematic symbol we use for the Zener diode? Instead of a straight line cathode, if you remember, we have a symbol of a diode, of a simple diode like that, कि जिसमें हमारे पास कैथोड जो था वो एक स्ट्रेट लाइन था, जबकि दूसरा टर्मिनल जो था उसका एनोड था. Zener diode में क्या है कि Zener diode has a bent line on the cathode reminding the letter Z for Zener. यानी अगर हम इस आम जो पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल था उसके जो कैथोड साइड पर मौजूद ये लाइन है, इसको हम Z की फॉर्म में लिख लें, लाइक Z की शेप में, इंग्लिश लेटर Z की शेप में. तो ये हमें ये रिमाइंड करवा रहा है कि जैसे ये हमारे पास Z को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी Zener को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो दैट इज द स्कीमेटिक सिंबल यूज्ड फॉर द Zener diode. Zener diode is actually a silicon p-n junction device. It is designed for operation in the reverse breakdown region. यहाँ पर हमें Zener diode की स्पेशलिटी बताई जा रही है कि Zener diode बिल्कुल आम डायोड की तरह ही है जो हमारे पास आम p-n junction डायोड है. हाँ, इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसको रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन या रिवर्स बाइस में भी ऑपरेट किया जा सकता है. और यू कैन से दैट कि ये Zener डायोड ऐसा डायोड है कि जिसको डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि ये रिवर्स बाइस में भी ऑपरेशन कर सकता है या ऑपरेट हो सकता है. So the breakdown voltage is set by carefully controlling the doping level during manufacture. अब हम इसका ये रिवर्स ब्रेकडाउन में या रिवर्स बाइसिंग में इसको ऑपरेट होना कैसे कंट्रोल करेंगे, दैट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन द डोपिंग लेवल. के डोपिंग लेवल को एडजस्ट करके डोपिंग लेवल को या कंट्रोल डोपिंग लेवल के थ्रू आप जो है इसको रिवर्स में भी ऑन करवा सकते हैं या कंडक्ट करवा सकते हैं. The VI characteristic with the normal operating region for Zener diode is shown as a shaded area on the other side. A major application of Zener diode is a type of voltage regulator for providing stable reference voltages for use in power supplies, voltmeters and other instruments. यानी जो हमारा Zener डायोड है इसकी सबसे बड़ी जो एप्लीकेशन है वो वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर यूज होना है. और वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर इसको यूज करना हमें स्टेबल रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइड करता है, जिसको हम मुख्तलिफ पावर सप्लाईज में, मुख्तलिफ वोल्टमीटर्स में और इसके अलावा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करते हैं एज ए रेगुलेटर के तौर पर. Here in this slide we have shown the Zener diode VI characteristic curve and its schematic symbol. Here you can see that जो पिछले स्लाइड पे हमने ड्रॉ किया कि ये बिल्कुल हमारे पास आम डायोड की तरह का ही सिंबल है. फर्क सिर्फ ये है कि इसका जो कैथोड है उसको हमने थोड़ा सा बेंड कर दिया है और अब ये
रिजेम्बलेंस दे रहा है एक लेटर की जिसको हम Z कहते हैं या Z कहते हैं, अल्फ़ाबेट है। इस Z का मकसद ही हमारे पास ये है कि अब ये सिंबल जो होगा ये ज़ीनर डायोड को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज ये आम पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही था। उसी तरह से इसका एक कैथोड टर्मिनल है और उसी तरह से उसका एक एनोड टर्मिनल है। एनोड पॉजिटिव होगा और कैथोड जो होगा वो नेगेटिव होगा। फॉरवर्ड बाइस में अगर हम देखें तो ये ग्राफ हमें शो किया गया है VF और IF के बीच में। तो फॉरवर्ड बाइस में हमारा ज़ीनर डायोड बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा है जो कि हमारे पास आम पीएन जंक्शन डायोड कर रहा था। यानी अगर हमारे पास सिलिकॉन का बना हुआ है तो 0.7 तक ये फॉरवर्ड बाइस में होने के बावजूद कंडक्शन नहीं करेगा। 0.7 के बाद ये मैक्सिमम कंडक्शन जो है वो स्टार्ट कर लेगा। हाँ, रिवर्स ब्रेकडाउन में अगर हम देखें सो रिवर्स बाइसिंग के दौरान हमारा जो ज़ीनर डायोड है उसको हम ऑपरेट करवा सकते हैं सेफ रीजन के अंदर या सेफ जोन के अंदर, जबकि हमारा जो आम पीएन जंक्शन डायोड था उसमें ये ऑप्शन थी ही नहीं कि आप उसको रिवर्स बाइस में भी ऑपरेट करवा सकें। जैसे ही हम वो ऑपरेशन शुरू कर लेता था वो इतना हीट अप हो जाता था कि वो बर्न आउट हो जाता था। लेकिन हम कहते हैं ज़ीनर डायोड को आप सेफली जो है रिवर्स ब्रेकडाउन या रिवर्स साइड पर भी या रिवर्स बाइस में भी उसको ऑपरेट करवा सकते हैं। So the shaded area in this picture is showing the reverse breakdown region, which is normal operating region for the Zener diode. And इस वोल्टेज को हम देख सकते हैं, we have represented it by VZ, जो कि एक्चुअल में रिवर्स वोल्टेज है। ठीक है, और यहाँ पे जो करंट हमें शो हो रहा है that is the reverse current. Zener breakdown. There are two types of reverse breakdown, the Avalanche and the Zener breakdown. यानी बेसिकली हमारे पास Zener डायोड में दो किस्म के ब्रेकडाउन है। एक को कहा जाता है Avalanche ब्रेकडाउन और एक को कहा जाएगा Zener ब्रेकडाउन। Avalanche इफेक्ट अकर्स एट सफिशिएंटली हाई रिवर्स वोल्टेज, और हमने ये Avalanche इफेक्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ था आम डायोड के केस में कि जब आपके पास रिवर्स बाइस में बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इतने एनर्जाइज हो जाते हैं कि वो करंट जो है वो रैंडम मोशन करते हैं, और जब वो रैंडम मोशन करते हैं तो वो बाकी एटम्स के साथ टकरा कर उनके इलेक्ट्रॉन्स को भी फ्री बना देते हैं। तो एक का दो, दो के चार, चार के 8 फ्री इलेक्ट्रॉन्स वजूद में आते हैं। विद इन माइक्रो सेकेंड इतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं और इतनी हाई एनर्जी के साथ होते हैं कि वो हमारे इस डिवाइस को डैमेज कर देते हैं। सो दैट वाज द एवालांची इफेक्ट। यहाँ पर भी हमारे पास ज़ीनर डायोड में एवालांची इफेक्ट होगा एट वेरी हाई रिवर्स वोल्टेज, जब हम बहुत ज़्यादा हाई रिवर्स वोल्टेज जो है अप्लाई करेंगे। हाँ, ज़ीनर ब्रेकडाउन कौन सा होगा? इट अकर्स इन अ ज़ीनर डायोड एट लो रिवर्स वोल्टेज। अगर हमारे पास कंट्रोल रिवर्स वोल्टेज है यानी कंट्रोल अमाउंट ऑफ रिवर्स वोल्टेज है तो उस वक्त हमारा ज़ीनर डायोड ज़ीनर ब्रेकडाउन के बाद जो है वो ऑपरेट होगा। यानी ज़ीनर ब्रेकडाउन से मुराद क्या हुआ कि जब आपका ज़ीनर डायोड काम करना स्टार्ट कर लेगा, कंडक्शन स्टार्ट कर लेगा। और एवालांची ब्रेकडाउन का मतलब कि जब वो डेंजर जोन में दाखिल हो चुका है और वो किसी भी वक्त जो है वो डैमेज हो सकता है। Zener diode is heavily doped to reduce the breakdown voltage, causing a very thin depletion region. चूंकि डोपिंग लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो इसका मतलब है कि उसमें जो डिप्लेशन रीजन है वो बहुत थिन होगा, रिजल्टिंग इन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन डिप्लेशन रीजन। और डिप्लेशन रीजन के अंदर चूंकि डोपिंग लेवल ज़्यादा है तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड भी वजूद में आता है, यानी डिप्लेशन रीजन भी जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पर मुश्तमिल होगा। नियर ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये कहाँ पर? ये जब हम रिवर्स में ज़ीनर डायोड को ऑपरेट करेंगे और ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज के करीब करीब ये पॉइंट होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड पुल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर वैलेंस बैंड एंड क्रिएट करंट। और रिवर्स ब्रेकडाउन के बाद ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा फ्रॉम देयर वैलेंस बैंड्स एंड विल रिजल्ट इन अ करंट, और करंट को जो है वो क्रिएट किया जाएगा। ज़ीनर विद ब्रेकडाउन वोल्टेजेस ऑफ लेस देन 5 वोल्ट ऑपरेट इन ज़ीनर ब्रेकडाउन। यानी जो हमारे पास ऐसे ज़ीनर डायोड्स हैं जिनका ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट से लेसर है उनको नॉर्मली ज़ीनर ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट किया जाता है। विद ब्रेकडाउन वोल्टेजेस ऑफ ग्रेटर देन 5 वोल्ट ऑपरेट इन एवालांची ब्रेकडाउन। कहने का मतलब ये है
कि जो जीनर ब्रेकडाउन यानी लेस देन 5 वोल्ट में ऑपरेट कर रहे होंगे तो वो सेफली ऑपरेट होंगे, और अबव जो 5 वोल्ट होंगे तो वो एवलांच ब्रेकडाउन में होंगे। यानी अगर आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो बहुत चांसेस है कि आपका डायोड जो है वो एवलांच इफेक्ट की वजह से डैमेज हो जाएगा। commercially available without breakdown voltage commercially available with breakdown voltages from less than 1 volt even to 250 वोल्ट। मार्केट में जो हमारे पास जीनर डायोड अवेलेबल हैं उसमें हमारे पास ब्रेकडाउन वोल्टेजेस 1 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट तक जो है वो अवेलेबल हैं। यानी आपके पास ऐसे जीनर डायोड भी हैं जिनको आप 1 वोल्ट या उससे भी कम वोल्टेज पर रिवर्स बाइस में ऑपरेट करवा सकते हो, और ऐसे भी हैं कि जो 50 वोल्ट तक जो है ऑपरेट नहीं होते, यानी 50 वोल्ट के बाद जो है उन्होंने रिवर्स में कंडक्शन स्टार्ट करना है। विथ टॉलरेंस फ्रॉम 1% टू 20%। टॉलरेंस का मतलब कि उसमें जो वेरिएशंस हैं वो 1% से लेकर 20% तक पॉसिबल है। नाउ द ब्रेकडाउन कैरेक्टरिस्टिक्स। As the reverse voltage VR is increased, the reverse current IR remains extremely small up to the knee of the curve. पिछली ग्राफ में भी हमने देखा कि जब हम रिवर्स बाइस में रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं हमारा जो रिवर्स करंट है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, वो नहीं बढ़ता। क्या उसमें जो इंक्रीज है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। कब तक? जब तक नी पॉइंट नहीं पहुंच पाता। नी मीन्स जहां से हमारे पास वो बेंड कर्व में हमारे पास वो बेंड शो किया गया है। द रिवर्स करंट इज आल्सो कॉल्ड द जीनर करंट। इस रिवर्स करंट को हम जीनर करंट भी कहते हैं, जिसको हम IZ से रिप्रेजेंट करते हैं। एट दिस पॉइंट द ब्रेकडाउन इफेक्ट बिगिंस, और यही एक्चुअली हमारे पास वो ब्रेकडाउन पॉइंट है कि जहां से हमारे पास वो ब्रेकडाउन इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। द इंटरनल जीनर रेजिस्टेंस आल्सो कॉल्ड जीनर इम्पिडेंस। जीनर का जो इंटरनल या इस डायोड का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको हम जीनर इम्पिडेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, इट बिगिन टू डिक्रीज एज द रिवर्स करंट इंक्रीज रैपिडली, क्योंकि इनवर्स करंट जो है वो रैपिडली इंक्रीज होना शुरू हो जाता है एट द पॉइंट ऑफ नी। इस तरह का पॉइंट होगा लाइक दैट वन। सो इस नी पॉइंट पर चूंकि हमारे पास करंट जो है वो रिवर्स करंट जो है वो इंतहाई क्विकली जो है या रैपिडली जो है इंक्रीज हो रहा होता है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द नी VZ remains essentially constant, although it increases slightly as the Zener current IZ increases। जब करंट इंक्रीज हो रहा है तो इसके साथ साथ आप देखेंगे कि VZ बहुत मामूली जो है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ना कि इफ वी आर डीलिंग विद रिवर्स बाइस, अगर हम रिवर्स बाइस को डील कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे रिवर्स करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो रिवर्स करंट बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो रहा है लेकिन वोल्टेज में बहुत मामूली इंक्रीज आ रहा है। अगेन हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास वो रिवर्स ब्रेकडाउन में हम जेनर डायोड को ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है लेकिन करंट जो है वो ना होने के बराबर है या बहुत स्मॉल है। इस पॉइंट पर जिसको हमने नी कहा, या ये वाला पॉइंट आप कंसिडर कर लें, दैट इज अ नी करंट। यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारे पास जो वोल्टेज होगी दैट विल बी टर्म्ड एज अ VZ, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट जो है बहुत क्विकली इंक्रीज हो रहा है, हालांकि उसके मुकाबले में वोल्टेज जो है वो बहुत मामूली इंक्रीज हो रहा है। यानी जब एक दफ़ा कंडक्शन स्टार्ट कर लेती है तो फिर अगर आप वोल्टेज को थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे करंट आपके पास बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। Okay, now starting with the Zener regulation, which is the key feature of a Zener diode. So first we have to define the regulation कि regulation का मतलब होता क्या है। So according to regulation or according to the definition of a regulation, it is the ability to keep the reverse voltage across diode terminals essentially constant। यानी हमारे पास जो डायोड है, जो Zener डायोड है, उसे जब हम रिवर्स बाइस में ऑपरेट करते हैं तो इसके अक्रॉस जो रिवर्स वोल्टेज होता है उसे अगर हम इस डायोड के अक्रॉस कांस्टेंट रखें तो ये कांस्टेंट डायोड के अक्रॉस वोल्टेज का मिलना दैट इज एक्चुअली वोल्टेज रेगुलेशन है। यानी आपके पास आपके जीनर डायोड के अक्रॉस अगर परमानेंटली कांस्टेंट वोल्टेज आपको मिलता रहे दैट इज नाउन एज अ वोल्टेज रेगुलेशन। रेगुलर वोल्टेज आपको मिलता जाएगा।
It acts as a voltage regulator, the Zener diode acts as a voltage regulator by maintaining nearly constant voltage across its terminals. यानी Zener diode के टर्मिनल के क्रॉस आपको तकरीबन कांस्टेंट वोल्टेज ही मिलेगा और a specified range of reverse current values. हाँ, ये जरूर है कि ये कांस्टेंट वोल्टेज तब तक मिलेगा जब तक आप इस रिवर्स करंट की एक रेंज के अंदर रहेंगे। यानी अगर आपके पास रिवर्स करंट की कुछ स्पेसिफिक रेंज है, मिनिमम और मैक्सिमम, उसके बीच में अगर आप इसको ऑपरेट करेंगे तो आपको परमानेंटली कांस्टेंट वोल्टेज मिलता रहेगा एक रास्ता ज़ीनर डायोड। अ मिनिमम वैल्यू ऑफ रिवर्स करंट IZK, मिनिमम करंट को हमने IZK यानी ज़ीनर करंट या ज़ीनर नी करंट से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। दैट इज द मिनिमम value of the reverse current. It must be maintained in order to keep the diode in breakdown for voltage regulation. आपके डायोड ने इस पॉइंट पर या इस करंट लेवल पर वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज के तौर पर काम स्टार्ट कर लेना है, या हम ये कह सकते हैं कि रिवर्स करंट की मिनिमम वैल्यू जिसको हम IZK से रिप्रेजेंट करते हैं, आप अगर इससे करंट को कम करेंगे तो आपका डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन में ऑफ हो जाएगा। यानी रिवर्स ब्रेकडाउन में उसको ऑपरेट होने के लिए इतना मिनिमम करंट आपने प्रोवाइड करना है। सो जब इतना मिनिमम करंट आप प्रोवाइड करेंगे, ब्रेकडाउन अगर होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इफ IZK इज रिड्यूस्ड बिलो, अगर हम उसको नी जो पॉइंट है उससे रिड्यूस करेंगे, वोल्टेज डिक्रीजेस ड्रास्टिकली एंड रेगुलेशन इज लॉस्ट। आपकी रेगुलेशन बंद हो जाएगी क्योंकि ज़ीनर डायोड जो है वो ऑफ हो जाएगा या कट ऑफ मोड में चला जाएगा। Also, if reverse current goes above IZM is representing the Zener maximum current. अगर इससे above जाएगा, the diode may be damaged due to excessive power dissipation. तो ज्यादा वोल्टेज और ज्यादा करंट की वजह से, ज्यादा पावर डिसिपेशन की वजह से बहुत चांसेस हैं कि आपका डायोड जो है वो डैमेज हो जाए। तो अगर हमने IZK और IZM ये दो करंट्स हैं, इन रेंज के अंदर अपने इस डायोड को ऑपरेट किया तो हमारे पास हमें कांस्टेंट वोल्टेज जो है वो मिलती रहेगी और हमारा वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो सक्सेसफुल होगा। Thus, Zener diode maintains a nearly constant voltage across its terminals for the values of reverse current ranging from IZK to IZM. यानी इन दोनों के बीच में हमने इसको ऑपरेट करना है। VZ is usually specified on a data sheet at a value of reverse current called the Zener test current. VZ की वैल्यू क्या है, या ये डायोड हमारे पास कितने ब्रेकडाउन वोल्टेज का है, 5 वोल्ट का है, 10 का है, 15 का है, 20 का है, ये हमें पता चलता है डेटा शीट पर मौजूद IZT की अमाउंट से। यानी IZT पर जो वोल्टेज होगी यही उसका ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कंसिडर किया जाता है। इफ यू कैन सी दैट, यहाँ पर हमारे पास तीन करंट हमने शो किए हुए हैं, IZK representing the Zener नी करंट, IZM representing the Zener maximum करंट। इन दोनों के बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक दैट इज अ सेफ रीजन, या यू कैन से दैट इज अ वोल्टेज रेगुलेशन रीजन के जहाँ पर आपका डायोड कंडक्शन मोड में होगा रिवर्स बाइस में और कांस्टेंट वोल्टेज आपको मिलती रहेगी। अगर इससे यानी IZK से आपका करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, आपका डायोड जो है कट ऑफ में चला जाएगा। और अगर IZM से हम वोल्टेज करंट को इंक्रीज करेंगे तो हम बहुत चांसेस है कि हमारा डिवाइस जो है वो डैमेज हो सके। तो इन दोनों के पॉइंट्स के बीच में हमने इसको ऑपरेट करना होता है। एक तीसरा पॉइंट है IZT के नाम से, जिसको हम कहते हैं ज़ीनर टेस्ट करंट। ये नॉर्मली हमारे पास डिफाइन करता है कि ये हमारा जो ज़ीनर डायोड है वो कितने वोल्ट का है। यहाँ पर यू कैन सी दैट VZ एट IZ या IZT से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, टेस्ट करंट जिसको कहा जाता है। अगर यहाँ पर वोल्टेज 5 वोल्ट होगा तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास 5 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली पे जो है वो ऑपरेट हो रहा है। क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत कम होती है तो हम इस वजह से अप्रोक्सीमेट कंसीडर कर लेते हैं कि ये 5 वोल्ट का ज़ीनर डायोड है। और अगर यहाँ पर VZ 10 वोल्ट होगा, डेटा शीट पर गिवन होगा, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 10 वोल्ट का ज़ीनर डायोड है। Now the Zener Diode Equivalent Circuit. In case अगर हमारे पास Zener Diode अवेलेबल ना हो या किसी वजह से डैमेज हो जाए तो क्या हम उसका इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं, या क्या हम उसको किसी
इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं कि वो बिल्कुल उसी तरह से काम करे जिस तरह ज़ीनर डायोड कर रहा था. We can say that yes, if Zener diode is ideal, that is the first approximation of the diode, ideal model, practical model and complete diode model. अगर हम कहें कि Zener diode let's say ideal है, तो in reverse breakdown along with its ideal characteristic curve, it can be seen on the in a figure on the next slide. यानी सपोज कर लीजिए कि हमारे पास आइडियल डायोड है जो कि रिवर्स ब्रेकडाउन में ऑपरेट हो रहा है और उसका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी हमें फिगर में शो किया गया है. इट हैज अ कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू Vz. इसके एकरास मुस्तकिल तौर पर एक कांस्टेंट वोल्टेज Vz ड्रॉप होगा. अगर 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट ही इसके एकरास रहेंगे, 5 वोल्ट का है तो 5 वोल्ट ही इसके एकरास रहेंगे. Vz produced by reverse breakdown is represented by a DC symbol या VDC symbol, even though the Zener diode does not produce a voltage. और हम चूंकि कहते हैं कि ये हमारे पास कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है, तो क्यों ना हम इसको रिप्लेस कर दें एक डीसी बैटरी के साथ जो कि हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करे. हियर यू कैन सी दैट कि इफ द डायोड इज आइडियल, सो हम कह सकते हैं कि इसमें किसी किस्म की इम्पीडेंसेस वगैरह है नहीं. तो अगर ये 5 वोल्ट का हमारे पास Zener डायोड है जिसका हम कहते हैं Zener ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट है या Vz इक्वल टू 5 वोल्ट है, तो हम कह सकते हैं कि ये तो बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे हमारे पास एक डीसी बैटरी है. यानी हम सिंपल इसको एक डीसी बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं विद द सेम वोल्टेज एज इट्स ब्रेकडाउन वोल्टेज. आइडियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होगा कि फॉरवर्ड बाइस में ये मैक्सिमम कंडक्शन करेगा विदाउट एनी बैरियर पोटेंशियल, विदाउट एनी रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस या डायनामिक रेजिस्टेंस. रिवर्स बाइस में भी जो है ये कंडक्शन नहीं करेगा बावजूद इसके कि हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, किसी किस्म की कंडक्शन हमें शो नहीं हो रही. जैसे ही हमारे पास Vz अगर होगा तो हमारे पास मैक्सिमम फ्लो जो है इसमें से स्टार्ट हो जाएगी. ओके, Zener इक्विवेलेंट सर्किट में फर्दर हम अब प्रैक्टिकल मॉडल को डिस्कस करते हैं कि इफ अ Zener डायोड is made of any semiconductors like silicon or germanium वगैरह, तो प्रैक्टिकल मॉडल जब हम उसका कंसीडर करते हैं, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन जिसको हमने कंसीडर किया हुआ था, along with the Zener impedance Zz not vertical, a change in Iz produce a small change in Vz. तो उसका असर क्या होगा कि हमारे पास अब Zener डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हमने Zener impedance कहा हुआ था उसे इंक्लूड करना पड़ेगा. अब जो हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, अब हमारा रिवर्स बाइस में ये जो IR होगा वो इस अंदाज में नहीं होगा, बल्कि उसमें थोड़ा बहुत इम्पीडेंस शो होगा. Now according to the Ohm's law, the ratio of delta Vz to delta Iz is the impedance as expressed in the following equation, where we can see that the impedance of a Zener diode is equal to change in Zener voltage divided by change in Zener current. Normally, Zener impedance is specified at the IZT, which is the Zener test current. It is best to avoid operating a Zener diode near the knee of the curve because the impedance changes dramatically in that area. कहने का मतलब ये है कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम Zener डायोड को उसके नी पोजीशन, यानी जो नी करंट था, जो बिल्कुल उसका स्टार्टिंग पॉइंट है या जिसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन रीजन जहां से स्टार्ट हो रहा है, वहां पर एहतियातन हमें उसको ऑपरेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज वहां पर जो इम्पीडेंस है उसमें चेंज जो है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज्ड देखा जा सकता है. हाँ, अगर हम उसको IZT की पॉइंट पर या जो उसका डाटा शीट पर स्पेसिफाइड VZ होता है वहां पर अगर हम इसका मेजर करें तो वो ज़्यादा बेहतर इम्पीडेंस जो है हमें प्रोवाइड कर सकता है, जो ज़्यादा बेहतर वैल्यू जो है इम्पीडेंस की प्रोवाइड की जा सकती है. The Zener equivalent circuit for the practical Zener diode, here we can see that again उसी तरह से IZK, IZM जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम करंट पॉइंट शो कर रहे हैं, जबकि IZT के थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे अगर हम एक एरिया मुख्तस कर लें और उसमें डेल्टा VZ फाइंड आउट कर लें,
और डेल्टा आई जेड फाइंड आउट कर लें, यानी कितने चेंज इन करंट के लिए कितना चेंज इन वोल्टेज आ रहा है, तो उससे जो हमें ज़ीनर इम्पीडेंस मिलेगा वो हमें ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू प्रोवाइड होगी। प्रैक्टिकल मॉडल में अब हम देख सकते हैं कि ज़ीनर डायोड को अगर हम उसके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो जहां पर हमने डीसी सोर्स यूज़ किया हुआ था और आइडियली हमने उसका इम्पीडेंस इग्नोर किया हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर हम डीसी सोर्स के साथ साथ ज़ीनर इम्पीडेंस और उसके अक्रॉस ड्रॉप होने वाले वोल्टेज को भी कंसिडर करेंगे। यानी अब हमारा VZ अगर ज़ीनर डायोड को हम रिप्लेस करना चाहते हैं उसके इक्विवेलेंट सर्किट से, तो उसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हमारे पास वोल्टेज सोर्स और एक ज़ीनर इम्पीडेंस या ज़ीनर डायोड के अक्रॉस ड्रॉप होने वाला वोल्टेज जो कि उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से है वो भी इंक्लूड करना होगा। तो टोटल हमारे पास VZ अब इन दो चीज़ों पर मुश्तमिल होगा। Example is given here. A Zener diode exhibits a certain change in VZ, यानी Zener वोल्टेज में चेंज को ऑब्जर्व किया जा रहा है फॉर अ सर्टन चेंज इन द IZ। अगर हम Zener करंट में चेंज लाते हैं तो उसके साथ साथ हमारे पास VZ में भी चेंज आ रहा है ऑन अ पोर्शन ऑफ द लीनियर कैरेक्टरिस्टिक कर्व बिटवीन IZK एंड IZM। IZK और IZM के बीच में एक एरिया लिया गया है जहां पर करंट को चेंज करने से वोल्टेज में भी चेंज आ रहा है। So what we have to do, what is the Zener impedance? We have to find that what is the Zener impedance. So again we have a formula for finding the Zener impedance, that is Zener impedance is equal to change in Zener voltage divided by change in Zener current. Here you can see that we have 50 millivolt change, which is already shown in the figure, that is delta VZ is equal to 50 millivolt divided by 5 milliampere, which is the change in current. Here you can see that we have a minimum 10 milliampere while the maximum point at 15 milliampere. So a difference between these 2 points is a 5 milliampere. Here it is also mentioned as a delta IZ. जब हम 50 मिली वोल्ट को 5 मिली एम्पियर पे डिवाइड करते हैं, सो बोथ साइड पर हमारे पास मिली मौजूद है वो कैंसिल हो जाएंगे। 50 जो है 5 पे डिवाइड होके हमें 10 प्रोवाइड कर रहा है। सो वी हैव द Zener impedance which is equal to 10 ohms. The temperature coefficient, the percent change in VZ for each degree Celsius change in temperature. टेम्परेचर कोफिशिएंट से मुराद ये है कि जब हम टेम्परेचर वेरी करते हैं तो हर एक डिग्री सेंटीग्रेड के साथ हमारे पास जो डेल्टा जो हमारे पास VZ है यानी Zener वोल्टेज है उसमें जो चेंज आता है, दिस इज नोन एज अ टेम्परेचर कोफिशिएंट। या हम कह सकते हैं कि हर डिग्री सेंटीग्रेड के साथ जो VZ में चेंज आ रहा है ये उस डायोड का टेम्परेचर कोफिशिएंट कंसिडर होगा। एग्जाम्पल गिवन, अ 12 वोल्ट Zener डायोड यानी जिसका VZ हमारे पास 12 वोल्ट है विद अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ 0.01% पर डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड को चेंज करने से, टेम्परेचर को चेंज करने से इसकी जो VZ है उसमें 0.01% का फर्क आएगा। यानी अगर हम इसको डिवाइड करें तो वी कैन से दैट 1 आउट ऑफ 10,000 में से एक हिस्सा उसमें चेंज आएगा। विल एग्जिबिट अ 1.2 मिलीवोल्ट इंक्रीज इन VZ। यानी यहाँ पर वैल्यू भी बता दी गई है कि 12 वोल्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करें तो उसमें जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी 1.2 मिलीवोल्ट का। When the junction temperature increases 1 degree Celsius, जब हम इस Zener डायोड के जंक्शन के अक्रॉस टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करेंगे। कैसे ये मालूम हुआ और कैसे मालूम करेंगे? The formula for calculating the change in VZ or Zener voltage for a given temperature change for a specified temperature coefficient is given such that delta VZ must be equal to original VZ, जो कि लेट्स से इस केस में हमारे पास 12 वोल्ट है, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कोफिशिएंट जो कि 1.2 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज आ रहा है, एंड चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर से मुराद ये है कि लेट्स सपोज आपने जो डाटा शीट पे देखा और उस पे जो रेटिंग थी वो लेट्स से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए थी, अब आप उसको 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूज कर रहे हैं,
तो 35 और 25 का जो डिफरेंस होगा जो कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड बन रहा है, दैट इज अ डेल्टा टी. A positive temperature coefficient is equal to increase in Zener voltage with an increase in temperature or decrease with a decrease in temperature. मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट से क्या मुराद होगा कि आपके डेल्टा वी जेड जो है या वी जेड में जो तब्दीली आ रही है वो उसके साथ ऐड हो रहा है, यानी आपका जीनर वोल्टेज भी इंक्रीज होगा जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे. जबकि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट से मुराद क्या है कि वी जेड डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर और इंक्रीजेज विद अ डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी उसमें इनवर्स रिलेशन है. अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वी जेड डिक्रीज होगा, और अगर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा तो उसके मुकाबले में जो हमारे पास जीनर वोल्टेज है वो इंक्रीज होगा. इनवर्स रिलेशन है. जबकि पीछे वाले पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट से मुराद उसमें डायरेक्ट रिलेशन है. टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वी जेड इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वी जेड भी डिक्रीज होगा. Another example regarding the temperature coefficient is given here. An 8.2 volt Zener diode with 8.2 volt at 25 degree centigrade, यानी जो VZ उसका जीनर वोल्टेज है 8.2 जहां से वो कंडक्शन स्टार्ट करता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8.2 सेट किया गया है. Has a positive temperature coefficient of 0.05% per degree centigrade. 1 डिग्री सेंटीग्रेड की बदौलत इसमें 0.05% चेंज आ रहा है. सो व्हाट इज द जीनर वोल्टेज एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर 25 पे 8.2 था, 60 पे इसमें कितनी तब्दीली आएगी या हमारा नया जो जीनर वोल्टेज होगा वो कितना होगा. व्हाट इज द जीनर वोल्टेज. सो अगेन हमें चेंज ही मालूम करना है पहले. So the change in Zener voltage can be defined as delta Vz is equal to Vz, which is 8.2 volt. Temperature coefficient is 0.005% को ख़त्म करके हमने उसमें 100 पे डिवाइड किया तो 0.0005 में कन्वर्ट हुआ, मल्टीप्लाई बाय 35 डिग्री सेंटीग्रेड. तो सेंटीग्रेड के साथ कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. एंड जब हम इन तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे वी विल हैव 144 मिली वोल्ट, यानी इतनी तब्दीली आती है अगर हमारे पास 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा. इसमें ऊपर वाली लाइन में देखें तो 8.2 वोल्ट वीजेड हमने डायरेक्टली पुट किया हुआ है, ये हमारे पास परसेंट में गिवन है, जबकि ये हमारे पास 60 माइनस 25 था जो कि हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर था. सो कलेक्टिवली हमें क्या मिला 8.2 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज को ख़त्म करके हमने यहाँ पर 0.005 कर दिया डिवाइडेड बाय डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर, यानी 60 में से 25 को माइनस किया तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड. सेंटीग्रेड के साथ कैंसिल होगा और जब इन तीनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे वी विल हैव 144 मिली वोल्ट का चेंज इन जीनर वोल्टेज. नोटिस दैट 0.05% per degree centigrade was converted to this. The Zener voltage at 60 degree is now Vz plus delta Vz, यानी जो चेंज उसमें आ रहा है वो भी हमने उसमें ऐड करना है. So collectively we will have 8.2 volt plus 144 millivolt, which is equal to 8.34 volt, and that is the total Zener voltage at 60 degree centigrade. So हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है 0.14 वोल्ट का Zener voltage में चेंज आया है. Now the Zener power dissipation and the Zener power derating. So starting with the power dissipation, Zener diodes operate at a maximum power called the maximum DC power dissipation. Zener diode जिस maximum power पे ऑपरेट हो रहा है उसको हम कहते हैं maximum DC power dissipation या power dissipation at maximum, जो है PD maximum से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जो हमारे पास 1N746 Zener diode है, it is rated at a PD maximum of 500 milliwatt, जबकि इसके मुकाबले में 1N3305 मॉडल है Zener diode का, it is rated at a PD maximum of 50 watt. सिमिलरली बहुत सारी एग्जांपल्स और भी हैं जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें PD मैक्सिमम जो है मुख्तलिफ रेटिंग के साथ गिवन होगा. The DC power dissipation is determined by the formula. We have a formula P is equal to VI. अगर हम maximum power dissipation मालूम करना चाहते हैं so we can say that maximum power dissipation will be equal to PZ into IZ, या P is equal to VI. क्योंकि हम Zener के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो Zener voltage into Zener current.
नाउ व्हाट इज पावर डी रेटिंग? डी रेटिंग का मतलब कि जब टेम्परेचर वगैरह चेंज होता है तो उसके साथ आपकी पावर रेटिंग में जो तब्दीली आती है, दैट इज नोन एज अ पावर डी रेटिंग. So PD maximum is typically specified for temperatures at or below a certain value. जैसा कि हमने पहले कहा कि लेट्स से रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यू जो होगी वो गिवन होगी. से जो ऊपर की दो एग्जांपल्स हैं उसमें से लेट्स से हमारे पास ये पहली वाली एग्जांपल जो है इसका 500 मिली वॉट जो है मैक्सिमम पावर डिसिपेशन है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. सो अबव द स्पेसिफाइड टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर वेरी करेगा, पीडी मैक्सिमम इज रिड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू अ डी रेटिंग फैक्टर. तो उसके मुकाबले में हमारे पास जो पीडी मैक्सिमम होगा वो रिड्यूस हो जाएगा. रिड्यूस होने की वजह ये है कि टेम्परेचर बजाते खुद एनर्जी है, एनर्जी उसको मिल रही है टेम्परेचर की सूरत में, हीट की सूरत में, तो पीडी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा. और हमारा नया PD डी रेटेड जो होगा दैट विल बी इक्वल टू PD मैक्सिमम माइनस जो हमारे पास टेम्परेचर को चेंज करने से उसकी पावर में तब्दीली आई है जो कि मिली वॉट पर डिग्री सेंटीग्रेड इंटू डेल्टा टी होगा. डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर है तो वो भी सेंटीग्रेड में होता है, तो सेंटीग्रेड के साथ कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ पर जो पावर होगा दैट विल बी इन मिली वॉट. अब PD मैक्सिमम से मिली वॉट को माइनस कर देंगे, सो द न्यू जो वैल्यू होगी पावर की दैट विल बी द पावर डी रेटेड. The maximum D-rated power can be determined using this formula. Again, as an example, a certain Zener diode has a maximum power rating of a 400 milliwatt at 50 degree centigrade. Again, एक Zener diode given है जिसमें 400 milliwatt है 50 degree centigrade पर उसका power rating है. And a D rating factor of a 3.2 milliwatt per degree, जबकि उसमें D rating यानी D rating से मुराद के 1 डिग्री सेंटीग्रेड में या 1 डिग्री सेंटीग्रेड को चेंज करने पर उसमें 3.2 मिली वॉट का डिफरेंस आएगा. सो डिटरमिन द मैक्सिमम पावर द Zener कैन डिसिपेट एट अ टेम्परेचर ऑफ 90 डिग्री. हमें मालूम करना है कि 50 पर ये था 400 मिली वॉट, 90 पे हमारे पास क्या होगा. सो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला that power dissipated derated must be equal to power dissipation maximum minus milliwatt per degree centigrade into delta T. So power dissipated was 400 milliwatt and जो हमारे पास derating factor है वो 3.2 milliwatt per degree centigrade है. change in temperature जो है 90 minus 50 हो जाएगा which is equal to 40. so जब आप इस 40 को 3.2 milliwatt से multiply करेंगे you will have 128 milliwatt and collectively हमारे पास जो नया power dissipation होगा that is 272 milliwatt जो कि हमारे पास इस ओरिजिनल में से जो है वो काफ़ी कम हो चुका है. ऑलमोस्ट हम उसको कह सकते हैं कि ये तकरीबन उसका 25-30% जो है वो रिड्यूस हो चुका है. सो रिडक्शन की वजह क्या थी कि हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो हमारे पास जो नया पावर होगा, जो डी रेटेड पावर होगा, वो पहले जो पीडी मैक्सिमम था उससे रिड्यूस होगा. What is next in lecture number 11? In lecture number 11, we will continue the concepts of a Zener diode, and here we will discuss the Zener regulation with a variable input voltage. We will discuss how Zener diode can regulate a DC voltage. यानी हम Zener diode की जो सबसे important property है या application है Zener regulation की वो discuss करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे वो DC voltage को regulate करता है. और ये सब कुछ समझने के लिए हम उसकी एग्जांपल्स भी कंसिडर करेंगे या उन एग्जांपल्स के थ्रू जो है हम इसका ये रेगुलेशन जो एप्लीकेशन है वो समझने की कोशिश करेंगे. We will also discuss the Zener limiting where the three basic ways of a Zener diode limiting action. पिछली क्लासेस में हमने लिमिटिंग एक्शंस पढ़े थे डायोड के, पीएन जंक्शन डायोड के कि पीएन जंक्शन डायोड लिमिटर के तौर पर कैसे यूज होता है और कैसे वो क्लिपिंग करता है या लिमिटिंग करता है. तो आज या कल हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 11 में हम उसमें Zener लिमिटिंग एक्शन को या Zener लिमिटिंग एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे कि Zener डायोड को एज ए क्लिपर के तौर पर कैसे यूज किया जा सकता है. तो उसके मुख्तलिफ 3 बेसिक वेज होंगे, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे lecture number 11 में. Thank you very much. That is all for today. If you have any question, you can ask me through my email address, that is shahid.csit@suud.edu.pk. Once again, thank you very much.